today we are going to meet you Dr. H.K. Bali, Chairman Cardiac Sciences, Ivy Hospital, Mohali. Dr. H.K. Bali is the founder of Pattern Heart Foundation, and on 13th July at Hyatt Regency, Chandigarh, the Heart Foundation celebrate Heart Foundation Awards 2024. If we talk about the Dr. H.K. Bali, Dr. Bali has more than 38 years of experience in cardiology. He has introduced primary angioplasty for the management of heart attacks in this region. He has performed more than 20,000 coronary interventions as primary operator. He was an additional professor in PGI Chandigarh. His area of expertise include coronary artery disease, biventricular pacemakers, combo devices, CRD and ICD, and many more. Our team talked to the Dr. H.K. Bali and he gave us the detailed information about the Heart Foundation Award 2024. So let's see the shot of Heart Foundation Awards 2024 by the Heart Foundation. या न्यूट्रिशन में कोई प्रॉब्लम है या एनवायरमेंटल कोई इश्यूज है उनके बारे में हम अवेयरनेस करेंगे। तो ये 2011 से एक्टिव है और इसके दौरान हमने मल्टीपल हेल्थ चेकअप कैंप्स भी किए और कुछ कैंप्स में 5 से 7 लाख तक पेशेंट्स को आए और हम सारे टीम से डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं। एलोपैथी से तो करते भी हैं पर हम समझते हैं जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जिसमें चाहे वो आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, नेचुरोपैथी हो या और भी कोई किस्म की ऐसी जो टेक्नोलॉजी है, स्कीम है, मेडिकल स्कीम है, तो उसके भी डॉक्टर्स को हम इन्वॉल्व करके एक कम्प्रीहेंसिव अवेयरनेस प्रोग्राम और हेल्थ चेकअप प्रोग्राम है। और उसी के लिए हम समझते हैं कि जो लोग अच्छा काम करते हैं, बीमारियों को रोकने के बारे में, बीमारियों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के बारे में, हेल्दी लाइफस्टाइल सपोर्ट करने के बारे में और उनको हमें इंकरेज करना चाहिए। और जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो सिर्फ इंडिविजुअल के हेल्थ की बात नहीं करते हैं, हम फैमिली की हेल्थ की बात करते हैं, कम्युनिटी की हेल्थ की बात करते हैं और नेशन के हेल्थ की बात करते हैं। और हम समझते हैं तो इसके बारे में हमें अर्ली चाइल्डहुड से बच्चों से बात करते हैं। और अगर हम बच्चों में लाइफस्टाइल हेल्दी लाइफस्टाइल एजुकेट कर पाएँ, उनको ऐसी लाइफस्टाइल के बारे में चीज़ें हैं जो आगे जाके उनको हेल्प करेंगे, उनके बारे में ज्ञान दे पाए, उनसे डिस्कशन कर पाए, उनको इसमें इन्वॉल्व कर पाए, तो ये लॉन्ग टर्म में हमारी कंट्री के लिए बेहतर है। और जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो इससे 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जुड़ रही है। एक है एजुकेशन और दूसरी है स्पोर्ट्स। हम समझते हैं कि जैसे जैसे हम बिजनेस से ज़्यादा लिटरेसी की तरफ बढ़ते हैं, जैसे हमारी वुमेन एजुकेशन बढ़ती है, लिटरेसी लेवल बढ़ता है, सोसाइटी में अवेयरनेस आती है, एजुकेशन मिलता है। When nourished with care, it dances free for joy and health. The heart is the key. With its first beat, life begins, and with its last beat, the story ends. Having a heart means not just being alive, it means being compassionate, being merciful, and today, this is what we are celebrating tonight. Good evening, ladies and gentlemen. I am Avantika Nikhanj, and as your hostess for tonight, it is my privilege to welcome you all to the Heart Foundation's annual awards ceremony. Tonight, we celebrate the remarkable achievements and unwavering dedication of individuals committed
broader politics and political administration. We are honored that luminaries such as yourself have taken out the time from your busy schedules to be a part of this event. Your support plays a vital role in our mission. The Heart Foundation is one of the most prominent and active NGOs in the Tri-City, involved in carrying out public awareness programs about health, particularly cardiac health. It actively supports social initiatives like Clean India, conducts regular health and vaccination camps for prevention of communicable diseases, and educates the general public about the role of a healthy diet, exercise, and stress management in the prevention of lifestyle diseases. बहुत ही प्यारे दोस्त, साउंड चेक करो, इको, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, बड़े भाई और एक अच्छे दिल वाले इंसान और उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित इस शहर के बहुत सारे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज को नमस्कार, जय श्री राम, सत श्री अकाल। कभी कभी हम कहते हैं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्वे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हम गणेश जी की वंदना करके इस मंत्रोच्चारण से उनसे निवेदन करते हैं कि निर्विघ्न सारे कार्य हमारे पूरे हों। मुझे लगता है कि डॉक्टर बाली जी को तो शायद सिंस बर्थ गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त है और निर्विघ्न इनके कार्य पूर्ण होते हैं। अगर आप इनके एजुकेशन डेज को देखें, बहुत सारे जो इनके साथ पीजीआई में जिन्होंने काम किया है और हम उम्र है, उनको पता होगा कि आप डॉक्टर साहब गोल्ड मेडलिस्ट है पीजीआई में। डॉक्टर साहब से मेरा रिश्ता लगभग 2002 में बना। तब से लेकर आज तक एक डॉक्टर के नाते कम और समाज सेवी के नाते मेरे को ज्यादा जानता हूं। एक ऐसे इंसान के रूप में जानता हूं जो लगातार सामाजिक मुद्दों के ऊपर, जो लगातार देश की पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर, जो लगातार इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर अपनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं, चिंता करते हैं। हार्ट फाउंडेशन लगभग 11-12 वर्षों से इस ट्राई सिटी में, खास करके वैसे जम्मू और उधर भी काफी प्रोग्राम किए श्रीनगर में, लेकिन इस ट्राई सिटी में सेवा करती आ रही है। और हमने जोशी फाउंडेशन और हार्ट फाउंडेशन के साथ मिलकर बहुत सारे कार्यक्रम किए, एंटी ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम किए, मेडिकल कैंप्स किए। अभी डॉक्टर साहब का वीडियो सुन रहा था, 7-8 हज़ार डॉक्टर साहब संख्या बोल गए। डॉक्टर साहब जो हमारा लास्ट 4th कैंप हुआ उसमें 12,000 लोग आए थे, आपको शायद ध्यान नहीं होगा। It's an honor and a privilege to welcome you to the annual function of Heart Foundation. At the outset, I want to make a couple of confessions. You know, speech is something to which you get addicted. And especially if you're fond of speaking, it takes few minutes, at least 3-4 minutes, to get started. So today, I have a little problem, because there are at least 4 pairs of eyes who are keeping a watch on me that I don't exceed 3 minutes. So I must say, it's a tough job, but I try to be concise. 3 pair of eyes maybe I can avoid, but 1 pair of eyes I can't avoid. That's the eyes which keep a watch on me, what I do, what I speak, what I eat, what I don't do, and what I should be doing. And that is the eyes of my daughter.
So therefore, I can't avoid those eyes. So she is keeping a watch on me, and I will try to finish my talk in 3 minutes time. You know, when we talk about heart diseases, Dr. Maridal Kandidas is there, the former president of Cardiology Society of India. He will know, and we all keep on talking about that I have done 20,000 angioplasty, somebody else has done about 30,000 angioplasty, surgeons so and so has done about 20,000 bypass surgery. But these are minuscule when we talk about the volume of heart diseases we have in India, which is unfortunately becoming the capital of not only heart disease, but other non-communicable diseases also. So how do we address it? We can keep on doing angioplasty. The floods are not going to stop. So we need to go to the root cause. Where are these diseases coming from? And they're coming from our lifestyle. And therefore, we need to go to the root cause, to the schools, to our universities, to see that our children, young adults and adolescents have a healthy lifestyle. And therefore, there is no alternative but to go towards prevention. And that is why some of my friends, doctors, some non-doctors, whom we have known each other for almost 50 years. We got together and we thought that we must make a foundation which focuses on the root cause of these heart diseases. And when we're talking about heart diseases, it became obvious to us that we can't be talking about heart diseases in isolation. We have to talk about comprehensive lifestyle. And that is where the role of education and sports came along. So we thought that we must set up this foundation which will future try to make an impact on life of people and in turn impact positively the quality of life of our country. So therefore the objective is very large, but the work is very meticulous. The work is in small little areas of our slums, small little areas of our periphery, focusing on the underprivileged, focusing on people who are not fortunate enough to get the best treatment available. Each one of us, we are doing our bit from the Heart Foundation. But it's important that each one of us tries to concentrate on what is going around in our society. And Dr. Bali, I'm sure it's going to be a tough ask to be here and give a speech as guest of honor. But I must thank Dr. Bali, Heart Foundation, members of jury for Heart Foundation Awards, astute members of the society, my teachers and my teachers' teachers here, and all the clinicians, members of the clinical fraternity, my colleagues from Nivasa who are here. Thank you so much for being here, and thank you so much, Dr. Bali, for having me here. I'm delighted with the opportunity to share my thoughts at this esteemed forum. I think a lot has been said about health. When we look at definition of health, the WHO definition of health, I think it states it's a complete physical, mental, social well-being, and not really absence of disease and infirmity.
who have done great work in the field of medical education and health. When we were discussing different departments and different people who have left an impact at the international level, all of the jury members, and I must enumerate the jury members, it was one of the most highly ranked jury. It included Mr. Sarvesh Koshar, ex-Chief Secretary, Punjab IAS, Mr. M.S. Malik, DGP, Haryana, Mr. K.N. Patel, ex-Vice Chancellor, Punjab University, Dr. R.K. Suri, ex-Head of Department, Cardiothoracic Department, Mr. Vivek Atri, ex-IAS, motivational speaker, TED speaker, cricket enthusiast, sports enthusiast, yoga enthusiast, etc. Madam Sudha Sharma, IRS, ex-Chief Commissioner, Income Tax, and we had this jury to select, and it zeroed on to Professor Amol Gupta. And please give a big hand to Professor Amol Gupta. I have known Professor Amol Gupta since more closely since 1992, when he had just become Professor of Ophthalmology. my heartiest congratulations to all the awardees for their outstanding contribution in their respective fields. In particular, I would like to extend our deepest appreciation to Dr. Amol Gupta for receiving the Lifetime Achievement Award. Dr. Amol Gupta's life exemplifies service to humanity, and his work in the field of ophthalmology has garnered worldwide recognition. He is indeed an ideal role model for every young doctor and inspiration to millions. We also extend our sincere thanks to the esteemed jury members for dedicating the time to select the award winners for the Heart Foundation. Dear sirs and madam, without your effort, selecting the right candidate would have been extremely challenging. Thank you for your association with our organization. We are immensely grateful to Dr. Pawan Kumar, CEO of Livasa Hospitals, for graciously accepting to be the guest of honor.
We also acknowledge with gratitude the presence of Dr. Mrinal Kantidas, past President of Cardiology Society of India, for gracing today's function. And it is an honor to welcome all the delegates of CIIST's 360 Curtain Raiser for joining us today. We are thankful to Mr. Vineet Joshi, patron Joshi Foundation, for being a constant source of support. It is pertinent to mention Heart Foundation and Joshi Foundation have collaborated on many mega free health camps and raising awareness about socially relevant issues. We deeply appreciate the members and volunteers who have worked tirelessly and selflessly to carry out various activities of Heart Foundation over the years. Keep rocking, team members. We are so very proud of you. A sincere thanks to the distinguished guests, family and friends for joining us in celebrating the winners of Heart Foundation Awards. We would also like to appreciate the team for meticulously organizing this event. Your efforts to organize today's program are commendable. मिलके रेगिस्तान बनता है, दीवा दीवा मिलके दिवाली बनती है, फुल फुल मिलके फुलवाड़ी बनती है। ओदा ही एक दिन दी मेहनत जनून दे नाल मिलके जेड़ा बेंचमार्क सेट हुंदा है, अज उन्हां नूं इत्थे सम्मान दिता ते जिन्हां नूं सम्मान अवार्ड मिलिया, जे आपां उन्हां दे लिए ये कह दईए कि इलायची दे दाणियां वर्गा हुंदा है मुकद्दर, ते चले जाने हैं ते इन्हां दी मेहनत अज उस जनून बन के अज जिवें एक फिल्म आई सी ना कि तारे ज़मीन पर, जे आपां असल मायने च देखिए वो तारे अज आपां इस स्टेज ते ही दिखे हैं हार्ट फाउंडेशन अवार्ड 2024 दे विच। सारे नूं मेरे वालों यानी आरजे जसी दे वालों बहुत प्यार। सवा 9 बजे 9 बजे तो पहला यानी कि हम तो 15 मिनट पहला 9 बजे का टारगेट है। इससे पहले या तो किसी के मोबाइल में या किसी के मोबाइल से मैसेज गया है जिसमें लिखा है लव यू, तो प्राइज आपका, जिसका लेटेस्ट होगा 9 बजे से पहले। हो सकता है वो शाम भी होवे, हो सकता है दोपहर भी होवे, हो सकता है वो सुबह भी होवे। तो अगले मोबाइल तो यहाँ का मैसेज गया हो या आया हो जिन्हें लव यू लिखा हो, पार्टनर भी हो सकता है, फैमिली मेंबर्स भी हो सकता है, प्यार है, प्राइस होता होगा, बड़ा प्यारा नजर आता है उन्होंने नहीं। ओके उधर हाथ खड़ा हुआ है एक बार, यस जाओ टाइमिंग। Sir, this is 9:58 p.m. yesterday. Yesterday, okay. 9:58 p.m. yesterday. 9:58 p.m. Okay. शो जैसे हमने देखा कि उस हार्ट फाउंडेशन के लिए जिसमें लोग जुड़ रहे हैं और जिसमें एक अवेयरनेस, एक क्रिएटिविटी, और डॉक्टर बाली और उसकी टीम ने जो ये आज ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? This excellent performance. I have liked this and this is excellent performance. This is in brief I wanted to say. And they have recognized you as a one of the award winner. How are you feeling? That is their greatness. That is their greatness. I have conveyed my news. On my views, they have said something. I am grateful to them.
कब ख्यालों की धूप ढलती है, हर कदम पर शम्मा सी जलती है, मेरा साया जिधर भी जाता। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर होने के साथ साथ ये जो रिकॉग्नाइजेशन है, जैसे हमने देखा कि ये जो हार्ट की फाउंडेशन चल रही है जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और समाज के लिए आप लोग सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे वो डॉक्टरी का प्रोफेशन है, चाहे ये लोगों की सेहत का मसला है, और जैसे अवेयरनेस आप फैला रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम था जिसमें शहर की बहुत ही उग्गी शख्सियतें हैं, डॉक्टर्स, और आपने उन लोगों का मान बढ़ाया जो अपनी अपनी कला में बहुत ही सेवा कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि हार्ट फाउंडेशन के अंतर्गत हम चाहते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो लाइफस्टाइल लोगों का ख़राब हुआ है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और उसमें सोसाइटी को जुड़ना ज़रूरी है। और उसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो सारे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स में, चाहे वो हेल्थ के बारे में हो, एजुकेशन में हो, सोशल वर्क में हो, या एजुकेशन में या स्पोर्ट्स में हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलके अल्टीमेटली हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। उनको हमें रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, रिकॉग्नाइज़ करके हमें उनको ऑनर करना चाहिए। इससे उनमें भी जज्बा ज़्यादा बढ़ता है कि वो आगे जाके और अच्छा काम करें और अच्छे लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने को लोगों को ज्ञान दें। और दूसरी बात यह है कि बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि वो भी ऐसे ही अच्छे काम करें, मेरिटोरियस काम करें, एक्सीलेंस की तरफ बढ़े और हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो आज हमने कुछ ऐसे लोगों को चुना जो हम समझते हैं कि इस रीजन में, और जब हम रीजन की बात करते हैं हम बात करते हैं पंजाब की, हरियाणा की, हिमाचल प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की, इस रीजन में चंडीगढ़ की। तो इस रीजन में जिन लोगों ने आउटस्टैंडिंग काम किया है उनको हमने ऑनर किया, और ये ऑनर हमने स्पोर्ट्स पर्सन को भी किया। आपने देखा होगा कि एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है जो हमें लगता है कि आगे जाके देश के लिए कुछ बड़ा अच्छा काम करेंगे। सोशल वर्क में भी किया। सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि अवार्ड्स आज के दिन में बड़ा डिफ़िकल्ट है किसी को चूज़ करना, क्योंकि इतने पुल्स एंड पुशेस होते हैं। तो हमने सोचा कि हमें एक बड़ी आउटस्टैंडिंग जूरी होनी चाहिए जिसकी इंटेग्रिटी पे या जिनकी काबिलियत पे कोई डाउट ना हो। तो हमने एक्स चीफ सेक्रेटरी को लिया, एक्स डीजीपी को लिया, फॉर्मर वाइस चांसलर को लिया, फॉर्मर एचओडी कार्डियोथोरेसिक सर्जरी को लिया पीजीआई के, और एक्स जो चीफ कमिश्नर हैं उनको लिया। सभी ने मिलकर सारे जो एप्लीकेंट्स थे उनको देखा, उनकी एप्लीकेशन देखी और सर्च भी किया कि उन लोगों ने जिन्होंने अप्लाई भी नहीं किया है बट उन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किया। क्योंकि ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो एक्चुअल में काम करते हैं वो खुद रिकॉग्निशन नहीं मांगते हैं। तो इस जूरी के पास मैंडेट था कि वो एप्लीकेंट से आगे जाके भी उन लोगों को चुन पाएँ। तो उन सबको हमने जब देखा तो ये यूनानिमिटी इन लोगों पे आई कि इन लोगों को हमें ऑनर करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि हार्ट फाउंडेशन और अच्छा काम करे, और हम उसमें कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, डॉक्टर्स को एजुकेट करते हैं, उनके लिए कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि दुनिया भर में जो प्रोग्रेस हो रही है, इनोवेशन हो रही है, नए ट्रीटमेंट के तरीके आ रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन से हो, ऑपरेशन से हो या किसी इंटरवेंशन से हो, वो हमारे कॉमन लोगों को, जो मार्जिनाइज लोग हैं, अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, कॉमन मैन, उन तक पहुंच पाए और अफोर्डेबल तरीके से पहुंच पाए। वो तभी पॉसिबल है अगर हम वो नॉलेज जो है वो डॉक्टर्स तक पहुंचा पाएंगे, और हार्ट फाउंडेशन के जरिए हम वही करते हैं। सर, अगर हम बात कर रहे हैं जो प्लास्टिक की, जो आपने उस समय पर शुरू की जब इंडिया में बहुत ही कम सर्जन जो है ये सेवा कर रहे थे, और आज आपने इतनी ज़्यादा एंजियोग्राफीज आप कर चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे कि एक लंबा एक्सपीरियंस और नई टेक्निक, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा नई नई टेक्निक चूज़ की है। आप पुराने डॉक्टर हैं, आज के लोग कहते हैं कि हमने नए डॉक्टर के पास जाना, लेकिन जो डॉक्टर बाली है वो एवर फ्रेश है, उसने हमेशा कोई ना कोई इनोवेशन की है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर को हमेशा स्टेट ऑफ आर्ट नॉलेज भी होना चाहिए और उनको अप टू डेट करंट होना चाहिए, और उनको नए तरीके
ईजाद करने चाहिए। तो कल हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो CIIST 360 है, जिसमें हम सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन जो हैं हार्ट की बीमारी में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारे स्पीकर्स जो हैं वो दुनिया के डिफरेंट पार्ट से आए हैं और उन्होंने वो कल डिस्कस करेंगे। हम भी ऐसे जो हमने पिछले 1 साल में सबसे कॉम्प्लिकेटेड या सबसे अच्छे केसेस करे हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ताकि वो टेक्निक बाकी डॉक्टर्स भी सीख सकें और उससे अपने मरीज़ों को हेल्प कर पाएँ। तो ये हम कल करेंगे। मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि एक अच्छा डॉक्टर जो है वो सिर्फ नॉलेजेबल नहीं हो, उसमें एम्पैथी भी हो, उसमें लर्निंग की कैपेसिटी भी कंटिन्यूस रहे और उसमें पेशेंट के बारे में हर समय वो सोचता रहे। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और मैं कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीज़ें करते रहें। डॉक्टर कभी बूढ़े नहीं होते, डॉक्टर कभी एज नहीं होते, डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड होते हैं और हमें लगता है कि एक्सपीरियंस बड़ा इम्पॉर्टेंट है। यूथ की एनर्जी होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए और इनोवेशन होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मिलकर एक अच्छा डॉक्टर बनाते हैं। आपके लोग जिनको ये लगता है कि जब भी हम एंजियोग्राफी कराएंगे तो एंजियोप्लास्टी हो जाएगी, क्या कहना चाहेंगे कि हमारे खाने, हमारा पीना, हमारे वो परोंठे, हमारे वो दूध मलाई वाले, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो चीज़ें थी हमारी, क्योंकि जो चेक करा लेगा वो बच जाएगा, जो नहीं चेक कराएगा तो वो उड़ जाएगा। हम समझते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल ख़राब हुआ है और लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने के लिए जो हम पहले करते थे वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारी न्यूट्रिशन इम्प्रूव होनी चाहिए, हमारी एक्सरसाइज बढ़नी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़नी चाहिए और हमारा स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए और हमें अपने टेस्ट कराने चाहिए, क्योंकि हमें ऊपर से लगता नहीं है कि कोई बीमारी हो। कोई भी आप रिस्क फैक्टर देखेंगे जो हार्ट आगे जाके बीमारियां करता है, वो कोई सिम्टम्स नहीं ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट में नहीं करते। चाहे वो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, चाहे वो शुगर की बीमारी हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो, ये सारी बीमारियां जो हैं इनके सिम्टम्स नहीं आते। तो हम समझते हैं कि पीरियडिकली हमें हेल्थ टेस्ट कराने की ज़रूरत है और उसके बाद अगर हमें लगता है कि हमें लाइफस्टाइल तो इम्प्रूव करना ज़रूरी है ही, हर स्टेज पे रहता है, बट अगर हमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत है तो हमें मेडिसिन लेनी चाहिए, पीरियडिकली चेक कराते रहना चाहिए। और अगर टेस्ट से किसी को लगता है कि कुछ इंटरवेंशन कराने की ज़रूरत है या सर्जरी कराने की ज़रूरत है तो वो करानी चाहिए। आज के दिन में टेक्नोलॉजी बड़ी प्रोग्रेस कर गई है। हमारे जो टेक्निक हैं प्रोसीजर करने के वो बड़े अच्छे हो गए हैं, सेफ़ हो गए हैं, डायग्नोसिस के तरीके बड़े अच्छे हो गए हैं। तो इसलिए अगर हम डायग्नोसिस कर पाते हैं तो किसी भी स्टेज में बीमारी है उसमें हम पेशेंट की हेल्प कर पाते हैं। वो एंजियोप्लास्टी के ज़रिए हो या जिनका हार्ट मसल कमज़ोर है उनमें प्रोटेक्टेड एंजियोप्लास्टी हो, हम समझते हैं इमेज गाइडेड एंजियोप्लास्टी होनी चाहिए। तो ये सारे तरीक़ों से हम किसी भी स्टेज में हार्ट की बीमारी हो उसका इलाज कर पाते हैं। हम समझते हैं कि कोई भी ऐसा मरीज़ नहीं है जिसका हम इलाज नहीं कर पाएंगे आज के दिन में टेक्नोलॉजी के कारण। पहले जिन लोगों को हम नो ऑप्शन कहते थे कि उनका दवाइयों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, एंजियोप्लास्टी उनकी हो नहीं सकती और सर्जरी भी पॉसिबल नहीं है, उनमें भी हम काफ़ी लोगों में आज के दिन में इंटरवेंशन के जरिए हेल्प कर सकते हैं। चाहे वो नाड़ियों को इलाज करने का हो या चाहे वैल्व का इलाज करने का हो, जो पहले नहीं हो पाता था, हाई रिस्क होता था, आज के दिन में पॉसिबल है। तो मैं पंजाब के लोगों से और बाकी स्टेट के लोगों से भी ये कहूँगा कि हमें अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें। आज के दिन में अगर हम अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करेंगे तो अगले कुछ सालों में वो उसका इम्पैक्ट आएगा। हमारे जो बच्चे हैं, जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनको भी हमें लाइफस्टाइल के बारे में बताना चाहिए ताकि हमारे कंट्री का जो हेल्थ है आगे जाके अच्छा हो और हमें डायबिटीज़ की शिकायत कम हो, ब्लड प्रेशर की शिकायत कम हो, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी कम हो, मोटापे की बीमारी कम हो और आगे जाके हार्ट की बीमारियां ना हो। डॉक्टर बालू जी एन इंस्टीट्यूशन आपका हमें समय देने के लिए और इतना बड़ा जो आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए बात करके मुझे बड़ी खुशी हुई है और मैं आपके माध्यम से आपके सभी जो ऑडियंस है, सभी जो सुनने वाले हैं, उनको नमस्कार कहूँगा और कहूँगा कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने हार्ट का ख्याल रखिए, टेस्ट कराइए, अगर कोई दिक्कत आती है तो इलाज कराइए। शुभकामनाएं, टेक केयर। देखिए वो काली काली दुनिया, जुल्फ भी हटा
आज का जो ये इवेंट था जो कि बहुत ही सक्सेसफुली हुआ और जिसमें शहर के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, डॉक्टर्स और वो लोग जो कला को प्यार करते हैं उन्होंने यहाँ शिरकत की। क्या कहना चाहेंगे कि ये एक स्टार्टिंग है इनिशिएटिव की और ये आगे बढ़ता जाएगा और आने वाले दिनों में ये केवल चंडीगढ़ तक ही नहीं सारे हिंदुस्तान में ये जो लहर है जाएगी। हम पिछले 12 साल से ये काम कर रहे हैं और ट्राई सिटी में हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। कार्डियक रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स हुई हैं एंड लॉट ऑफ सोशल इनिशिएटिव्स जो हमने ट्राई सिटी में की हैं। अब हम इसे और बढ़ाना चाहते हैं पूरे इंडिया में। वी वांट पीपल टू जॉइन एंड कम एंड इंक्रीज द हार्ट फाउंडेशन मूवमेंट सो दैट वी कैन टेक द सोशल इनिशिएटिव्स टू अ बिगर लेवल। जैसे आपने, अगर हम बात कर लें आपके प्रोफेशन की, आपने उसमें भी एक ऐसे एंटरप्रेन्योर्स तैयार किए हैं जो कनाडा में जाकर दे आर डूइंग वाइट कॉलर जॉब्स। Yes, I am into educational field now. Though I'm a doctor, I've changed my career profession into guiding students into getting admissions abroad in the top league universities, be it in US or Canada, Singapore, UK, everywhere. We guide them to get into the best universities and also get great scholarships. You are a combination of those renowned personalities जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सेवा की है, अपनी ज़िंदगी में बहुत ही क्रिएटिविटी की है एंड यू आर आल्सो डूइंग PhD एंड जॉइनिंग योर मदर एंड फादर्स। क्योंकि हमने अब देखा है कि जब भी हम लोग जाते हैं कभी तो ऐसा हमने एटमॉस्फेयर नहीं देखा, क्योंकि मदर फादर होते हैं लेकिन बच्चे उस तरह से इंटेंगल नहीं होते। लेकिन आपका माइंड सेटअप, जैसे आपने अपने मम्मा पापा के साथ वही उनकी ले में ले मिलाते हुए एक यंग एनर्जेटिक उनको आप आइडियाज़ देते हो और चीज़ों को और आगे लेकर जाते हो। हाँ, मेरा मानना है कि यंगर जनरेशन का बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अपने ओपिनियंस देते रहें, क्योंकि इससे बेसिकली अब जो नए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो हम ज़्यादा लाइमलाइट पे ला पाएंगे और उसके जो सल्यूशंस हैं, जैसे आजकल AI आ गया या कुछ और आ गया टेक्नोलॉजीज़, तो वो यंगर जनरेशन आइडियाज़ देते रहें और इन्वॉल्व होना चाहिए उनको डिसीजन मेकिंग में भी। क्या मैसेज रहेगा यूथ्स को, क्योंकि नो डाउट दे आर डूइंग देयर स्टडी, दे आर डूइंग PhDs, they are doing, but they have to follow their parents and they have to follow their society also. हाँ जी, बिल्कुल। आई थिंक कल्चरली हम बहुत सीखते हैं। इंडियन जो हमारा कल्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली सिस्टम को बहुत वैल्यू करता है। और हालांकि मैं अभी US में हूँ, मैं अभी भी वो मानती हूँ कि फैमिली सिस्टम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ओल्डर जनरेशन अपनी विजडम हमें दे सकती है। तो वो सारे यंगर जनरेशन को भी मानना चाहिए कि उनके जो ओपिनियंस हैं वो किसी लर्निंग से ही आए हैं वो ओपिनियंस। बेटा, क्या कहना चाहेंगे कि हमारे जो देश के लोग हैं जो चाहते हैं कि +2 के बाद ही हम लोग प्लान कर लें, क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट्स होकर अगर वो डॉक्टरेट कर जाते हैं तो वो वाइट कॉलर जॉब करते हैं और उनको एक नया मुकाम मिलता है, इंस्टेड कि वो लोग अपना एक वो मिशन जो है, नो डाउट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गोइंग अब्रॉड यू कैन गो अब्रॉड बट नॉट विदाउट एनी पोस्ट ग्रेजुएशन। एक्चुअली मैं खुद अंडरग्रेड में ही गई हूँ, तो मैंने वही पढ़ाई की है। तो डिपेंड करता है कि आपका एम क्या है, क्योंकि वहाँ भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आपको सिर्फ बाहर जाने के लिए नहीं बाहर जाना चाहिए, बट अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके लिए बेस्ट हैं, वो देख के आप जाइए तो फिर अच्छा रहता है। So you have done your graduation and post graduation also? Yes. Your mother is your mentor? Yes, for sure. हाँ जी। So